Hello, my dear children. Welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. I'm Vandana and we are doing SST Class 8. This is your book, Time Travelers, Unraveling Mysteries. So today we are going to start with chapter number 2 of your book, and the name of the chapter is The Establishment of Company Rule. Company rule कैसे start हुआ, that we are going to read. So before starting, let's do this exercise. What can we learn about the British East India Company from this badge? So this is their badge जो वो लगाते थे. So you have to find out about the British East India Company from this badge. What do you understand? This you have to find out and write it here. The Mughal Empire began to decline after this reign of Aurangzeb. So अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मुगल एम्पायर औरंगजेब के डेथ के साथ ही जो है खत्म होने लगा. With the next 50 years since signs of decline and disintegration were visible. So अगले 50 years में ऐसा लग रहा था कि जो disintegration है या जो decline है वो साफ हमें दिखाई दे रहा था. After Aurangzeb, there were no powerful Mughal rulers, but Mughal emperor continued to be symbolically important. So औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं था, लेकिन मुगल एम्परर्स अभी भी थे जो जो वहां पे रूल कर रहे थे. In fact, when a massive rebellion against British rule broke in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as a natural leader. So जैसे ही rebellions ने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में एक आप कह सकते हो मोर्चा निकाला और उसमें जो लीड कर रहे थे वो थे बहादुर शाह जफर. तो वो एक मुगल एम्परर थे और उन्होंने एक नेशनल लीडर की तरह हमारा साथ दिया. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the company. So जैसे ही revolt जो है कंपनी ने बंद करा दिया, so कंपनी ने इस revolt को खत्म करा दिया, तो क्या कहा गया, बहादुर शाह जफर को कहा गया कि वो ये किंगडम छोड़ के जा सकते हैं. As his sons were shot in cold blood, क्योंकि उनके जो बच्चे थे उन्हें जो है मार दिया गया था. Now let's learn about mercantilism. During the 17th and the 18th centuries, the rulers of some European countries followed the policies of mercantilism, that is protecting their countries trade from foreign competition to increase trade profit. So mercantilism क्या है? ये है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना. किससे? ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन कंपटीशन के जो ट्रेड है उससे प्रोटेक्ट करना ताकि अपनी कंट्री का जो भी प्रॉफिट है उसे हम इंक्रीज कर सके. These rulers encourage the establishment of colonies. So ये जो रूलर्स हैं, ये जो भी कॉलोनीज थे, इसके एस्टैब्लिशमेंट में इन्होंने सहयोग दिया. When raw materials could be bought cheap and finished goods could be sold at high prices without competition from foreign trade. So इस समय क्या हो रहा था, जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ही सस्ते दामों पे लाए जाते थे और जो फिनिश्ड गुड थे उसे बहुत ही महंगे दामों पे बेचा जाता था बिना किसी कंपटीशन के. Their efforts to establish colonies and capture others trade centers in different parts of the world led to intense rivalry and resulted in war on land and sea. So इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इन सारे एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, जो कॉलोनीज थे वो इस्टेब्लिश हो गए और जो भी ट्रेड सेंटर्स थे डिफरेंट पार्ट्स में जो भी वर्ल्ड के, उन सब ने क्या किया, उन सब में आपस में राइवलरी स्टार्ट हो गई और जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गया. The coming of the English East India Company. The East India Company was established in London in the year
1600 by the Royal Charter issued by the Queen Elizabeth I. So Queen Elizabeth के द्वारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी 1600 में. The Queen of England, she was a Queen of England. Here you can see the picture of Queen Elizabeth. According to this charter, the company got the sole rights of trade in the East Indies. So इस ये चार्टर बनाया गया था, क्वीन एलिजाबेथ ने बनाया था. और इसके अगर हम इस चार्टर के थ्रू जाएं तो इससे ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके वो पूरा राइट था, पूरा इकलौता राइट था उसके पास कि जो भी ईस्ट इंडीज में उन सब में वो ट्रेड कर सकती है, विच इंक्लूडेड ऑल प्लेसेस ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप्स, जहाँ पे ये सारे प्लेसेस इंक्लूडेड थे. Captain Hawkins of the East India Company arrived at the royal court of Jahangir in 1608. So 1600 में ये चार्टर जो है रॉयल चार्टर जो बना था और 1608 मीन्स 8 सालों के बाद जो है कैप्टन हॉकिंस जो है आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे उस समय, वो जहांगीर के कोर्ट में आए 1608 में, टू सीक परमिशन टू सेट अप द इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत. तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि उन्हें सूरत में ईस्ट ट्रेडिंग एक सेंटर बनाने की अनुमति दी जाए. Jahangir did not grant permission to Hawkins as the Portuguese were putting pressure on him not to do so. So जहांगीर ने उन्हें परमिशन नहीं दी क्योंकि पोर्चुगीज जो थे उन्होंने उन पर प्रेशर बना रखा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते. सर थॉमस रो came to India as an ambassador of James. So James जो थे उनके एक एम्बेसडर के रूप में सर थॉमस रो आए. द किंग ऑफ इंग्लैंड, सो जेम्स वन जो वो किंग थे इंग्लैंड के, उनके एम्बेसडर के रूप में वो यहाँ पे आए. टू द मुगल कोर्ट इन 1615 में वो आए. एंड ही obtained permission from Jahangir to establish English trading factories in different parts of India. तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी कि वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपनी इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं, तो उन्हें परमिशन चाहिए. द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एट आगरा. इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री को आगरा पे एस्टैब्लिश किया, अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया एंड ब्रोच में इन 1619 में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया. द मुगल्स वेलकम द इंग्लिश एंड काउंटरबैलेंस the predominance of the Portuguese and later on the Dutch. So Mughals ने इनका स्वागत किया, पोर्चुगीज के कहने के बावजूद उनका विरोध करते हुए उन्होंने इसका स्वागत किया. The East India Company during the 17th century, basking in the goodwill of the Mughals, secured the means of profitable trade. So ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17th सेंचुरी में अपना गुडविल वहां पे बनाया, जो प्रॉफिट ट्रेड था उसमें जो है इन्होंने प्रॉफिट एस्टैब्लिश किया. द इंग्लिश डेवलप्ड मार्केट इन यूरोप फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स. सो जो इंग्लिश थे उन्होंने अपना मार्केट बना लिया जिसमें वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे थे, इंक्लूडिंग इंडिगो, अ ब्लू डाई एंड सॉल्ट पर्टी. सो उन्होंने ये दोनों प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए थे. They found a big demand for fine quality hand-loomed Indian textile. So उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया में जो इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड है. As customer economy prospered in Britain, the demand of Indian fabrics such as chintz, calico and muslin also increased rapidly after the 1660. So जो कस्टमर्स थे ब्रिटेन के, उनकी भी डिमांड बढ़ गई ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई. दे ऑल्सो ट्रेड इन स्पाइसेस, और उन्होंने स्पाइसेस में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी. स्पाइसेस मीन्स मसालों का भी व्यापार स्टार्ट कर दिया. द राइज ऑफ द ब्रिटिश स्टार्टेड इन बंगाल. अब बंगाल में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हर जगह फैल चुके. व्हेन From the early 18th century onwards, the trade of Bengal had grown very profitable for the East Indian Company. So Bengal में उन्हें जो है जो ट्रेड उन्होंने किया था उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. In 1691, Aurangzeb issued a farman that granted the English to
the right of duty-free trade in Bengal from an annual payment of 3,000 rupees. So औरंगजेब ने एक फरमान इस्टेब्लिश किया, ग्रांट किया 1691 में, जिसमें जो है जो इंग्लिश मैन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें एक ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए 3,000 रुपये पर ईयर देना था. The English were granted the zamindari rights in their 3 villages of Kolkata, Sutanuti and Gobindapur. So अब वहाँ की 3 विलेजेस में उन्हें जिम्मेदारी राइट भी मिल गए ब्रिटिशर्स को. These villages combined to form Calcutta. और ये तीनों विलेज मिलके कैलकटा बन गए. In 1770, Farrukhsiyar, the Mughal emperor, granted the company the right to carry out duty-free trade. और 1717 में फर्रुखसियार ये एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दिए कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है कर सकता है. However, this became a matter of conflict between the new autonomous ruler Murshid Quli Khan, who refused to extend the right of duty free trade to the private company officials. अब क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने जो है राइट्स दिए ब्रिटिशर्स को कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उसी टाइम पे जो दूसरे रूलर थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि अब जो है ये कंपनी जो है ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं कर सकती है. तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई. The East India Company was probably the most powerful corporation in history. Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajudullah as the Nawab of Bengal. So Murshid Quli Khan का साथ इन दोनों ने दिया था. Each one of them was a stronger ruler. और दोनों ही बहुत ज़्यादा stronger ruler थे, राजा थे. They refused to grant the company concession. उन्होंने कंपनी को concession देने से मना कर दिया था. Demanded large tribute from the company's rights to trade. उन्होंने कंपनी से कहा कि उन्हें लार्ज अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर उन्हें यहाँ पे बिजनेस करना है. Denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. So इसके बदले उन्हें mint coins देना पड़ेगा. Accusing the company to deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authorities of the Nawabs. So ये एक्यूजेशन बनाया गया कि कंपनी जो है वो they claimed that the company was depriving the Bengal government. बंगाल गवर्नमेंट को डिप्राइव कर रही है और उनका रेवेन्यू जिससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. So कंपनी ने क्या किया, जो टैक्सेस से उन्हें पे करने से मना कर दिया. उन्होंने डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे थे नवाब्स को और उन्हें ह्यूमिलिएट किया था. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी. तो कंपनी ने कहा है कि ये जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ये जो फालतू की डिमांड्स हैं, इससे जो कंपनी है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड. और ये जो ट्रेड है, जो वो बिजनेस यहाँ पे कर रहे थे, वो तभी फुलफिल होगा, आगे बढ़ पाएगा अगर ये सारी ड्यूटी नीचे से हटा दी जाए. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट्स. सो ऐसा कहा जाता था कि कंपनी ने कहा कि अगर जो है इंडिया चाहता है कि ट्रेड को आगे बढ़ाया जाए, तो अगर उन्हें अपना ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए उन्हें बड़ी जगह चाहिए, और ताकि वो विलेजेस खरीद सके और वहाँ के जो फोर्ट्स वापस से रीबिल्ड कर सके, फिर से बना सके. द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू confrontations and finally accumulated in the famous Battle of Plassey. So ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया और लास्ट में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो गया. नाउ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. बंगाल का कॉन्क्वेस्ट क्या है, लेट्स सी. We are going to read about Battle of Plassey. The defeat of the English at the hand of Sirajul-Dowlah provoked the British to conspire to replace the young Nawab. अब क्योंकि सिराज उद दौला
के अगेंस्ट सब हो चुके थे, तो वो जो है डिफीट हो गए इस बैटल में, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यंग नवाब को वहां से रिप्लेस करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि इन्हें हटा के किसी और को नवाब बना देते हैं। द कंपनी ऑफिशियल्स लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी ऑफिशियल के जो ऑफिशियल थे रॉबर्ट क्लाइव, along with Mir Zafar, the commander-in-chief of Siraj-ud-Daulah, and other dissatisfied faction of the court called in this plan. So वो सब इसके खिलाफ थे, जो सिराजुद्दौला के जो चीफ थे वो सब इसके खिलाफ थे. This resulted in the Battle of Plassey in 1757 और इसी की वजह से ये युद्ध हुआ, in which the Nawab was defeated. The battle was hardly more than a brawl, and the largest contingent of the Nawab's army remained inactive under Mir Zafar command. So नवाब की जो आर्मी थी वो मीर जफर के कमांड के अंदर इनएक्टिव बिहेव कर रही थी. Siraj was captured and put to death, and Mir Zafar was appointed as a new puppet नवाब. अब जो है यहाँ से सिराज को जो है कैप्चर कर लिया गया, उसे मार दिया गया, और जिसका कमांडर था सिराज का, उसे जो है नया नवाब बना दिया गया एज अ पपेट नवाब. मीन्स वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकता है, तो उसके अलावा नहीं कर सकता. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. व्हाट कुड हैव बीन डन टू अप्रूव द ग्रोइंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इट्स अर्लियर फेज. तो क्या क्या किया जा सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से हटाने के लिए. सो अब जो है उसे जो है नया नवाब बना दिया गया मीर को. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स रूल स्टार्ट हो गया, क्योंकि दैट वाज अ पपेट नवाब देयर, और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने अपना राज्य स्थापित कर लिया. टिल देन द कंपनी ट्रेड इन बंगाल वाज फाइनेंस्ड थ्रू इंपोर्ट ऑफ बुलियंस फ्रॉम इंग्लैंड. सो उस समय तक क्या होता था, कंपनी का जो भी ट्रेड प्रैक्टिस होता था बंगाल में, वो सब जो इंग्लैंड से आता था, वो सारी मनी वहां से आती थी, वहां से फाइनेंस होता था. बट आफ्टर 1757 billions imported from England were stopped. Instead, billions was exported from Bengal to China and other parts of the India. So अब जो है वहां से ये फाइनेंस जो है बंद हो गया इंग्लैंड से इस युद्ध के बाद, और अब चाइना, बंगाल और इंडिया के बाकी पार्ट से ये होंगे. दिस गेव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द इंग्लिश टू द इंग्लिश एज कंपेयर टू द यूरोपियन राइवल्स. सो ये जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था इंग्लिश के लिए. एंड ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लॉर्ड क्लाइव मीटिंग मीर जफर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है मीर जफर को जो है वहाँ का नवाब बनाया गया. दिस पिक्चर इज ऑफ दैट. मीर जफर्स बिट्रेयल ऑफ इंडिया इन 1757 opened the doors to nearly 200 years of British rule in the country. So मीर जफर की इस काम के वजह से जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 सालों तक राज किया. Now let's talk about Battle of Buxar, which started in 1764. Mir Zafar found it difficult to meet the financial demands of the company. So मीर जाफर के लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था कि वो कंपनी की सारी बातें मान पाए, उनके जो फाइनेंशियल डिमांड्स है उसको फुलफिल कर पाए, पैसे से उसकी वो हेल्प नहीं कर पा रहा था. एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम इन 1760. और 1760 में मीर कासिम को उसकी जगह पे नवाब बना दिया गया, मीर जफर की जगह पे. मीर कासिम was unable to stop the misuse of free trade by the company officials. So मीर कासिम जो है वो जो भी फ्री ट्रेड हो रहा था उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा था. He abolished internal duties altogether. जो भी इंटरनल ड्यूटीज थी उसे उसने abolish कर दिया था, खत्म कर दिया था. So that Indian merchants could also enjoy the same privilege. ताकि जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो भी वही प्रिविलेज एंजॉय कर पाए जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे. The English did not approve on this display of the independence.
and by replacing him with मीर जफर अगेन. अब ब्रिटिशर्स को ये अच्छा नहीं लगा कि वो इंडियंस का साथ दे रहे हैं, मीर कासिम यहाँ पे इंडियंस का साथ दे रहे हैं, इंडियन ट्रेडर्स का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वापस से उन्हें रिप्लेस कर दिया और मीर जफर को वापस से वहाँ का नवाब बना दिया. Mir Qasim fled from Bengal and formed a grand alliance with the Mughal Emperor Shah Alam II and Shuja-ud-Dawla in Awadh. So मीर कासिम जब वहाँ से निकले और उन्होंने मुगल एम्परर्स जो थे शाह आलम खान और शाजुद्दौला जो अवध में है, तो उनके जो है साथ में मिल गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ. However, their combined army was routed by the British Army at the Battle of Buxar in 1760. So इन सब ने मिलकर एक अपनी आर्मी बनाई जिसे बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया. After the defeat, the English treated the Mughal emperors with some respect. So अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा सा डिफीटेड हो गए, जिसके बाद उन्होंने मुगल जो एम्परर्स थे उन्हें जो है रिस्पेक्ट के साथ रखा. However, Shah Alam II was forced to sign the Treaty of Allahabad. जिसके बाद जो शाह आलम सेकेंड जो थे उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. The treaty granted the British Diwani or the revenue collection rights of Bengal, Bihar and Odisha. अब इस ट्रीटी में क्या लिखा था, इस ट्रीटी में लिखा था कि जो ब्रिटिशर्स उनके पास राइट्स होंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. शाजुद्दौला was made to pay 50 lakhs as war indemnity. शाजुद्दौला को जो है 50 लाख रुपीस जो है देना पड़ा क्योंकि वॉर में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए. A British resident was posted at the court of Murshidabad who eventually controlled the administration of the entire province. So जो ब्रिटिश पर्सन जो था वहाँ के जो कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद था, एट द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद उसने कोर्ट मुर्शिदाबाद का जो कोर्ट था वहाँ पे उसने जो है एक कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया पूरे प्रोविंस में. Thus the company initiated the policy of indirect governments. अब इसके बाद जो कंपनी थी, जो इस कंपनी थी, उसने एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट्स को इनिशिएट किया, उसकी पॉलिसीज को इनिशिएट किया. द कंपनी कलेक्टेड ऑल द रेवेन्यू एंड कंट्रोल द आर्मी. कंपनी ने जो भी रेवेन्यू था उसको कलेक्ट किया और आर्मी को कंट्रोल करने लगा. बट डिड नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी आर्मी की नहीं ले रहा था. द नवाब हैड मेड मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट डिड नॉट हैव अ प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम और एनी रियल पावर टू इम्प्लीमेंट. जो नवाब थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत सारी थी, लेकिन उनके पास ना कोई सोर्स था इनकम का और ना ही वो अपनी किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते थे. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्यूअल गवर्नमेंट. सो ऐसे सिस्टम को ड्यूअल गवर्नमेंट या फिर ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. द कॉमन पीपल ऑफ बंगाल सफर टेरिबली ड्यू टू दिस. जो वहाँ के जो लोकल लोग थे बंगाल के वो बहुत ज़्यादा परेशान थे इसकी वजह से. द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ डिसाइसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी टू द यूरोपियंस. सो इस बैटल के बाद क्या पता चला कि जो इंडियन आर्मी थी वो ज़्यादा वीक है यूरोपियंस के मुकाबले. द ब्रिटिश गॉट कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ one of the richest states of India, and this permanently sorted out the financial problems of the British. So Britishers को अब जो पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल मिल गया था इंडिया के एक बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट स्टेट पे, जिससे उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो रही थी. Now let's learn about the dual system of administration which was from 1765 to 1772. Under this system, the administration was divided between the company and the Nawabs, but the whole powers was actually concentrated in the hand of the company. So, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नवाब्स और ब्रिटिशर्स दोनों ही कंट्री पे रूल कर रहे हैं, लेकिन जो मेन पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास थी, सीनियर कंपनी के पास.
This complex system remained in practice during the period from 1765 to 1772. ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये प्रैक्टिस जो है इतने टाइम तक चलता रहा. Under this system, Clive gave the responsibility of collecting diwani. So Clive को दीवानी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. दीवानी मीन्स रेवेन्यू. To the Indians and appointed 2 deputy diwans. इसने जो है इंडियन से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और 2 डेप्यूटी दीवान्स को अपॉइंट किया गया. और क्या नाम थे उनके? मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा शिताब रॉय फॉर बीकानेर. सो ये दीवान्स अपॉइंट किए गए फॉर निजामत फंक्शन विच आर द पुलिस एंड जुडिशरी. द ब्रिटिश गेव द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी of deputy nizam to मोहम्मद रजा खान. सो मोहम्मद रजा खान को एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो थी डिप्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पुलिस और जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. द डिप्यूटी निजाम could not be removed without the consent of the company. सो जो डिप्यूटी निजाम था उसे कंपनी के कंसेंट के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता था. Thus, although the responsibility for the administration, Diwani as well as Nizamat was exercised through Indian agencies, the company wielded the real power. भले ये दोनों चीजें इंडियन एजेंसीज करके, दीवानी और निजामत वाली जो दोनों काम इंडियन एजेंसीज करके, लेकिन जो भी पावर था वो सारा कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में था, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में. In 1772, Warren Hastings put an end to this dual system and Bengal completely came under the direct control of the company administration. So अब जब 1772 आया तो उस समय वैरन हेस्टिंग जो थे उन्होंने इस ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया और जो बंगाल था वो पूरी तरह से कंपनी के अंडर आ चुका था. अब सिर्फ वहां पे कंपनी का राज्य चल रहा था. The advent of AI can be tracked back to the work of cryptographers during World War II, who used early computing machines to crack military codes. The success of these efforts provided the foundation for the development of modern computing and artificial intelligence. Now let's learn about the Carnatic Wars. One of the first trading centers set up by the French was in Pondicherry. So जो पहला ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया था फ्रेंच के द्वारा वो पौंडीचेरी में बना. नाउ पुडुचेरी, अब उसका नाम पुडुचेरी है. इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी क्लोज टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के पास में है ये. A lot of wars were fought between the British, the French and the numerous independent rulers and their vassal in the middle of the 18th century. So 18th century में जो फ्रेंच थे, जो ब्रिटिशर्स थे और कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, उन सब के बीच में छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते थे. These wars were mainly confined to the areas dominated by the Nizam of Hyderabad. So areas कहाँ के थे? वो ये areas ज़्यादातर निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उनके डोमिनेशन के अंदर. In the 18th century, the coastal Carnatic region was a dependency of Hyderabad. So 18th century में जो कोस्टल कार्नाटिक रीजन था वो हैदराबाद के डिपेंडेंसी के अंदर आता था. So these wars are also known as Carnatic War. So इसलिए इस वॉर को हम कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं. Now in the first Carnatic War, the British captured some French ships. So first war जब हुआ तो ब्रिटिशर्स ने कुछ फ्रेंच शिप्स को कैप्चर कर लिया. They were supported by the Nawab of Carnatic. और नवाब ऑफ कार्नाटिक जो थे उन्होंने उनका सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स का. द फ्रेंच अंडर ड्यूप्लेक्स रिस्पॉन्डेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास. सो फ्रेंच ने क्या किया, इन्होंने कैप्चर किया फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास में. और मीनवाइल द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन एंडेड इन यूरोप. तो यूरोप में एक वॉर चल रहा था ऑस्ट्रियन सक्सेशन का, वो खत्म हो चुका था. एंड विद दिस द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर आल्सो केम टू एन एंड. और इसके साथ ही जो पहला कार्नाटिक वॉर था वो भी खत्म हो गया.
By the Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748, Madras was returned to the British in exchange for the French fortress of Luzerne in North America, which was British, which the British has captured. So ब्रिटिश ने कैप्चर कर रखा था इस फोर्ट को, तो ब्रिटिशर्स ने इस फोर्ट के एक्सचेंज में मैड्रास का वो फोर्ट जो है ले लिया. The Second Carnatic War began after the death of the rulers of both Carnatic and Hyderabad. जब इन दोनों जगहों के रूलर्स की डेथ हो गई तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ. In the war, the succession had broken out. The British and the French sided with opposite groups in Carnatic and Hyderabad. So इस वॉर में क्या हुआ, ये जो वॉर का सक्सेशन था वो टूट गया और जो ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे उन्होंने अपोजिट ग्रुप्स जो थे, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप, ये साइड में हो गए अपोजिट ग्रुप बन के. एट द आउटसेट द फ्रेंच सक्सीडेड इन मर्डरिंग देयर ओपोनेंट्स एंड प्लेसिंग देयर सपोर्टर्स ऑन थ्रोन्स. अब जो बाहर क्या हो रहा था, जो फ्रेंच थे ये जो है अपने ओपोनेंट्स को मर्डर कर दे रहे थे और उनकी जगह पे उनके कुछ सपोर्टर्स को थ्रोन पे राजगद्दी पे बैठा दे रहे थे. However, the British troops soon captured Arcot in 1751. So Britishers ने Arcot को 1751 में कैप्चर कर लिया. Clive's success led to additional victories for the British. So Clive का जो सक्सेस था उससे जो ब्रिटिशर्स को एक अलग से विक्ट्री मिली, जीत मिली, द निज़ाम एंड Arcot एलिस. सो इन सबको एक अलग जो है जीत मिली क्लाइव के सक्सेस से. The war ended with the Treaty of Pondicherry signed in 1754. So ये वॉर कब खत्म हुआ, जब एक ट्रीटी को जो है साइन किया गया, जो ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. The French leader Dupleix was asked to return to France. जो फ्रेंच लीडर थे उन्हें जो है फ्रांस वापस रिटर्न करने को कहा गया. The directors of the French East India Company were dissatisfied by the Dupleix political ambition. जो डायरेक्टर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के वो इससे डिससेटिस्फाइड थे और which had led to immense financial loss. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ. In 1754, Charles Godeau replaced Dupleix. और लास्ट में 1754 में जो चार्ल्स गोडेयू थे उन्होंने ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पे आ गए. The outbreak of the 7 Years' War in Europe in 1756 led to a fresh conflict between French and British forces in India. So जब ये वॉर खत्म हुआ 7 सालों के बाद, तो अब एक नया वॉर शुरू हो गया था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में इंडिया, leading to the Third Carnatic War. जिससे Third Carnatic War start हुआ. The British forces captured the French settlement of Chandanao in 1757. Then the British commander Sir Eyre decisively defeated the French under the Comte de Lay at the Battle of Vandewash in 1760. तो इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश कमांडर थे सर आई हूटी, इन्होंने डिफीट किया था फ्रेंच को और इनके आप कह सकते हो इनकी गाइडेंस के अंदर. एंड द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग अप ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस. अब जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया जिसके बाद ये वॉर खत्म हुआ. विच रिटर्न चंदेरनगर and Pondicherry to France. जो ये दो places थे वो फ्रांस के पास चले गए. And allowed the French to have factories in India but forbade French traders from administrating them. So इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में establish कर सके थे इन सारी जगहों पे. The French agreed to support British client government, thus ending the French ambition of an Indian empire and making the British the dominant foreign power of India.
सो फ्रेंच ने अब जो है सोचा कि चलो ब्रिटिशर्स जो थे उनको जो है सपोर्ट करते हैं, उनके जो भी एम्बिशंस थे उसमें सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल। अब बंगाल के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया, ब्रिटिशर्स का बंगाल के बाहर क्या हाल था, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो इन 1773 Warren Hastings was made the Governor General of all Indian territories of the company. So 1773 में जो वैरन हेस्टिंग थे उन्हें जो है इंडिया के जितने भी टेरिटरीज थे उनका क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैलकाटा was made his capital, कैलकाटा को कैपिटल बना दिया गया। At this time the company had direct control over Bengal, Madras and Bombay. सो इस समय कंपनी का जो पूरा कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल, वो इन सारे शहरों पे आ चुका था। एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अवध एंड कर्नाटक, और इन दोनों जगहों पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था। देयर वर 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स इन द डेक्कन्स, द मराठास, द निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। सो 3 इंडिपेंडेंट नेटिव पावर्स थे, ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर नहीं थे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट विच स्टार्टेड इन 1775 एंड एंडेड इन 1880। The third Peshwa Balaji Bajirao could not withstand the shock of the defeat of the Maratha in the third battle of Panipat. So battle of Panipat में जो वहाँ के जो तीसरे पेशवा थे उन्होंने वो शॉक को सहन नहीं कर पाए, डिफीट के शॉक को वो सहन नहीं कर पाए, और डाइड इन 23 जून 1761, उनकी डेथ हो गई इस दिन। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, अब उनके बाद उनका जो बेटा था वो राजा बना, माधवा राव। ही केप्ट इन चेक द एम्बिशन ऑफ हिज अंकल रघुनाथ राव, वो अपने जो अंकल थे रघुनाथ राव, उनके जो भी एम्बिशंस थे उसको चेक करता रहता था। एंड मेंटेन यूनिटी अमंग द मराठा चीफ एंड नोबल्स एंड वेरी सून रिकवर्ड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द मराठास व्हिच दे हैड लॉस्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो भी उनकी लॉस हुआ था उन सारे लॉस को उनके बेटे ने रिकवर कर लिया। The English became conscious of the growing power of the Marathas and wanted to crush their resurgence. So English जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे पता चल गया कि मराठा इज ग्रोइंग, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसे क्रश किया जाए, इसको जो है खत्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेरी सून आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव। सो माधव राव की डेथ के बाद उन्हें जल्दी ही अपॉर्चुनिटी मिल गई। इन 1772 The British fought 3 wars with the Marathas and finally crushed their powers and brought the Maratha territory until they took it. So Britishers ने 3 wars लड़े इनके साथ, इन मराठास के साथ, और लास्ट में इन मराठास के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। Now children, let's learn about the Anglo-Mysore War which started in 1769 and ended in 1999. So in the last 3 decades of the 18th century के last 3 decades बचे हुए, the British government got involved in the conflict with the powerful king of Mysore, which was ruled by Hyder Ali and his son Tipu Sultan. So Hyder Ali और उनके जो बेटे टीपू सुल्तान थे ये यहाँ के राजा थे मैसूर के। So अब जो ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते थे। Between 1766 to 1799, 4 wars were fought with Mysore. मैसूर के साथ 4 वॉर लड़े गए। These wars are known as the Anglo-Mysore War. और इन wars को Anglo-Mysore War के नाम से जाना जाता है। Finally, in 1799, in the 4th Anglo-Mysore War, Tipu Sultan was defeated by the British. So इस चौथे वॉर में टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था। टीपू डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम एंड टीपू सुल्तान वाज अ प्रोग्रेसिव एंड बेनेवोलेंट मोनार्च, और ये बहुत ही अच्छे एक राजा थे जिन्होंने अपने कैपिटल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी।
Now let's learn about annexure policies of the company. कंपनी के क्या क्या annexure policies हैं, that we are going to learn. The company adopted the following method to bring India under its dominance. So इंडिया को अपने अंदर लाने के लिए, अपने कंट्रोल के अंदर लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चाल चले, जिसमें से उसने कुछ पॉलिसीज बनाई. तो 3 पॉलिसीज यहाँ पे दी गई है. द फर्स्ट वन इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द सेकेंड वन इज सब्सिडरी एलियंस, and the third one is direct addiction. So let's read about them. The first is the doctrine of lapse. So the final wave of annexure occurred under Lord Dalhousie. So Lord Dalhousie के अंदर ही ये सारे annexures start हुए थे. Who was the Governor General from 1848 to 1856. So इसके बीच में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी. He devised a policy that came to be known as the doctrine of lapse. So उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका ये नाम था. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. So इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर जो है कोई भी राजा अपने बेटे को जन्म दिए बगैर मर जाता है, बेटा होना चाहिए, उसकी जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. दैट इज become a part of company territory, और ब्रिटिशर्स उसे वायर कर देंगे. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. और इस एक doctrine को लगाने के बाद क्या हुआ कि एक से एक करके धीरे धीरे सारे किंगडम उनके अंदर आने लगे बिना कुछ लड़े. सतारा in 1848, संबलपुर in 1850, उदयपुर in 1852, नागपुर in 1853 and झांसी in 1854. So ये सारे किंगडम्स उनके अंदर आ चुके थे because of this policy. Now the second policy is subsidiary alliance. Subsidiary alliance was devised by Lord Wellesley. Under the subsidiary alliance, the ruler of the state was provided with military security. So जो ruler था स्टेट था उसे मिलिट्री सिक्योरिटी मिलेगी. Once provided with military security, the princely state could remain independent so far as internal matters were concerned, but they could not exert their independence outside the state. So स्टेट के अंदर जो वो जो राजा था वो अपने राज्य के अंदर ही जो भी उसके रूल्स थे वो राज्य के अंदर चलेंगे, राज्य के बाहर उसका कोई भी रूल नहीं चलेगा. So ये policy, subsidiary alliance. The British company resident was kept in the court of the Indian king, and the princely states had to pay an annual amount towards the cost of the resident. So जो राजा थे उसे जो है बहुत सारे कॉस्ट जो है चुकाने पड़ते थे, एनुअल अमाउंट देना पड़ता था, और ब्रिटिशर्स का एक पर्सन जो है उनके उस कोर्ट में हमेशा मौजूद रहता था. The Indian ruler could not employ any European for his service without prior approval from the Britishers. So Britishers की अप्रूवल के बिना इंडियन रूलर किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, अपने यहाँ रख नहीं सकते थे. The Indian ruler also could not negotiate with any other Indian ruler without consulting the governor general. So बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के इंडियन रूलर किसी भी दूसरे इंडियन रूलर से नेगोशिएट नहीं कर सकता था. अंडर द सब्सिडियरी आइलैंड्स हैदराबाद, मैसूर, पेशवा, भोसले, स्किंडिया, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर केम अंडर द ब्रिटिशर्स. सो अब जो है इस पॉलिसी की वजह से इतने सारे जो जगह थी ये सारी जो है ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुकी थी. Now let's learn about the direct annexure. What is annexure of oath? The Nawab of Oath had many hair and could not therefore be covered by the doctrine of lapse. So जो नवाब थे ओथ के, उनके बहुत सारे बेटे थे और वो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं आ पा रहे थे. So the British had to come up with some other pretext to deprive him of his dominance. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब जो है कुछ और मीन्स
तरकीब निकाली जाए ताकि ये भी हमारे अंदर आ सके। Therefore, Nawab Wajid Ali Shah was accused of misgoverning his state and refusing to introduce reforms. So वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें जो है मार दिया गया कि वो अपनी गवर्नमेंट को मीन्स अपने स्टेट को मिसगवर्न कर रहे हैं, मीन्स वो चला नहीं पा रहे हैं ठीक से। His state was annexed in 1856 on grounds of maladministration. So उनके जो जगह थी जहाँ पे उनके राजा थे उसे 1858 में जो है ब्रिटिशर्स के अंदर ले लिया गया, वो अपनी जगह को ठीक से प्रॉपरली रन नहीं कर पाए। The annexation of Oudh created great discontent in the British Army and more of the sepoys in the army were from Oudh. So ये जो annexation था Oudh का of Oudh created great discontent in the British Army. British Army में इसने बहुत ही ज़्यादा discontent create किया, और जिसका मतलब था कि जो बहुत सारे जो सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में वो Oudh से ही थे। Now setting up a new administration, कैसे उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटल किया? Administrative and judicial reforms. The political and trade victories of East India Company and the enormous wealth amassed by the governors brought the company under the scrutiny of British Parliament. So जो political और trade victories थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा wealth मिल रही थी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो कंपनी स्क्रूटनी में आ गई अगेंस्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। In 1773, the British government passed the Regulating Act, which gave the Parliament greater control over the company's territories in India. So 1773 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रूल पास किया था और रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसमें जो पार्लियामेंट था वो जो कंपनी थी उसके जो भी टेरिटरीज इंडिया में उस पूरा कंट्रोल था। A council comprising the governor general and the 4 councillors were appointed to govern Bengal. So एक काउंसिल बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल था और 4 काउंसलर्स थे, ये सारे जो है बंगाल को गवर्न करने के लिए अपॉइंट किए गए। The Pitt's India Act 1784 future deepened the British government's control over the company. So British government का कंट्रोल जो कंपनी के ऊपर बढ़ गया because of this Pitt India Act. A board of control was established to supervise its working. So एक board of control बनाया गया जो इंडिया की जो भी चीजें हैं उसे supervise कर रही थी। The Charter Act in 1830 ended the company monopoly over trade in India. So जो Charter Act था उसने कंपनी के जो भी मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, जो भी इंडिया के ऊपर था, and allowed others investors to trade with India. तो मोनोपोली को उसने खत्म कर दिया चार्टर एक्ट ने, और बाकी इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। The governor general became the effective ruler of company territories in India. So जो गवर्नर जनरल था वो जो है इफेक्टिव रूलर बन गया इस कंपनी की टेरिटरीज में इंडिया में। The great work of Cornwallis was the overhauling of the civil service by employing capable and honest public servants. जो great works था कॉर्नवेल का, वो क्या था, वो ओवरहॉल कर रहा था सिविल सर्विसेज को, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय कर रहे थे सर्विस बाय एम्प्लॉइंग केपेबल एंड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। सो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स और कैपेबल पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जा रही थी। He discovered that the servants of the company were unpaid, but that they received very high commission on the revenues. In addition to that, they conducted forbidden and profitable private trade in the name of religious and trade. So ये देखा गया कि जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनकी जो है पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था। सो इसलिए जो है प्रॉफिटेबल प्राइवेट ट्रेड जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और किस ऑन द नेम ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड्स के नेम पे ये स्टार्ट किया गया।
Cornwallis persuaded the director of the company to pay handsome salaries to the company servants in order to free the servants and commercials and corrupt activities. So कॉर्नवाली जो है इसने जो परसुएट किया था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, किस लिए? ताकि एक हैंडसम सैलरी, एक अच्छी सैलरी दी जा सके कंपनी के सर्वेंट। Cornwallis found a Sanskrit college in 1791 at Banaras for Hindus, and now today this is Sapurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya of Varanasi. So Cornwallis ने एक संस्कृत कॉलेज को बनाया था 1791 में हिंदूज के लिए, और अब इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ऑफ वाराणसी कहा जाता है। Cornwallis secured the services of Sir William Jones, who was a judge and great scholar, and reorganized the judicial system. So Cornwallis ने क्या किया? उसने जो है जो भी सर्विसेज थे सर विलियम जॉन्स के, वो एक जज थे, तो उनके जो भी सर्विसेज थे उन्हें जो है रीऑर्गेनाइज किया फॉर अ बेटर जुडिशियल सिस्टम। द हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील, नेमली द सदर दीवानी अदालत, जो हाईएस्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट था, द सदर दीवानी अदालत एंड द सदर निजामत अदालत वर एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। ये दोनों जो कोर्ट थे, ये दोनों जो है जुडिशियल सिस्टम में जो है सबसे टॉप के कोर्ट्स थे, एंड फंक्शन इन कैलकाटा, और ये कैलकाटा में ही वर्क करते थे। Both these bodies were presided over by the Governor General and his council. So ये दोनों जो जगह थे, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो काउंसिल थी, ये यहाँ पे जो भी न्याय वगैरह की जो भी चीज होती थी वो ये कंट्रोल करती थी। Cornwallis was the first to introduce the codification of law in India and against the prevailing laws based on the Dharmashastra, the strength or whims of the ruler. He introduced the concept of rule of law, which meant that justice would be dispensed on written law for each crime, and that equality before law would prevail. Now, district and city courts function in the European judges. So, ये जो district और city courts थे, ये European judges यहाँ बैठते थे। Every district was provided with a court. जितने भी district थे सब में court था। Cornwallis had removed the collectors and their judicial powers and made them solely responsible for the collection of revenue. So Cornwallis ने क्या किया? जो भी collectors थे उन्हें जो है judicial powers से हटा दिया गया और सिर्फ revenue collection के काम में रखा। As a result, district judges were appointed, जिसकी वजह से district judges को appoint किया गया। Indian judges and munsis were appointed to a long-run position in all the courts of the judicial system. अब Indian judges को appoint किया गया इन सारे courts में for the judicial system. Cornwallis was merciful by temperament. ये जो Cornwallis थे ये बहुत ज़्यादा merciful थे, दयालु थे, and he put a stop to the barbarous punishments and abolished mutilation and trial by ordeal. So इन्होंने जो बहुत सारे punishments उन्हें खत्म कर दिया। Now let's learn about the police reforms. For effective implementation of judicial reforms, the police administration had to be reorganized. So ताकि जो भी judicial reforms थे वो अच्छे से implement हो सके, इसके लिए जो police administration था उसको अच्छे से reorganize करना था। The district judge controlled the police. जो डिस्ट्रिक्ट जज था वो क्या करता था? पुलिस को कंट्रोल करता था। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थानास और पुलिस सर्कल। हर डिस्ट्रिक्ट को थाना या फिर पुलिस सर्कल में डिवाइड किया गया। ईच ऑफ विच वाज अबाउट 20 स्क्वायर माइल्स, जिसमें से हर एक चीज 20 स्क्वायर माइल्स दूर थी। इट वाज प्लेस्ड अंडर एन इंडियन ऑफिसर कॉल्ड द दारोगा, हु वाज एबली असिस्टेड बाय मेनी कांस्टेबल्स। इसमें जो दरोगा थे जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टेबल्स वर्क करते थे। Thus, the East India Company was transformed from a, here you can see the picture in 1797 to 18
1840 and 1857. Thus, the East India Company, trading company of the terrestrial territorial colony power. The arrival of new steam technology in the early 19th century was aided this process. Until then, it would also take away anywhere between 6 to 8 months to travel to India by sea. So इस समय जो है colonial power जो था एक नया स्टीम टेक्नोलॉजी आ गया था जिससे जो है 6 से 8 महीने तक जो इंडिया के ट्रैवल किया जा सकता था इंडिया बाय सी रूट से यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकता था स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम to 2-3 weeks to time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. अब इन स्टीम शिप्स की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया जो है सिर्फ 3 हफ्ते में आ सकते थे. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territories and 78% of the population of the Indian subcontinents. So 1857 तक जो कंपनी थी उसने जो है 63% जो है जो भी परसेंट ऑफ द टेरिटरी जो भी टेरिटरीज थे उसके 63% और जो भी पॉपुलेशन था इंडिया का उसके 70% पे रूल कर लिया कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरीज और उसका जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है दूसरे टेरिटरीज पे वो भी था एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री The East India Company had virtually the whole of India under its control. और धीरे धीरे virtually जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने था ज़्यादातर इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था. How did the company expand its rule? This you have to write. Now let's quickly revise what we have learned. The European powers like the British, French, Portuguese and Dutch came to India as traders in the 17th century. These powers were the constant conflicts with each other in order to monopolize trade in India. The British defeated the French in the Carnatic Wars and established their supremacy in the Indian subcontinent. A series of wars with Bengal, Mysore, Marathas, and other Indian rulers and the French helped the British to establish their stronghold in India. The methods of expansion followed by the British included direct annexation and annexation to the subsidiary islands and the doctrine of lapse. Cornwallis overhauled the administrative system by introducing the Indian civil services. Now let's do the question and answer, dear children. What attracted the Europeans to India? So the Europeans were attracted to India for performing the trade practices because India was trading with many, it was rich in culture and diversity and the Europeans thought of establishing their trade practices here. Why was Siraj-ud-Dawla defeated in the Battle of Plassey? So this you have to write. What happened in the 4th Anglo-Mysore war? So जब 4th Anglo-Mysore War हुआ तो उसमें क्या हुआ था? What was the administrative reforms introduced by Lord Cornwallis? So Lord Cornwallis ने जो administrative reforms किए थे वो क्या थे? And what was the outcome of the Battle of Buxar? So Battle of Buxar हुआ था तो उसके होने से क्या-क्या चीज़ें जो है क्या-क्या outcome आया था क्या-क्या चीजें निकल के आई थी that you have to write. So children, these questions you have to do on your own. These are your homework and I hope you have understood the chapter. For completing the answers that are given to your homework, you have to read the book again and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay related.